मुझे ही तू इतना काम करवा रही है ना, मैं भाग जाऊंगा छोड़ के, मैं पहली बता रहा हूँ। मेरा सीना देख कितना तेज धड़क रहा है। आपसे दौड़ेगी घोड़ों की तरह। ये तो भाई अंदर से है ना, मेरे अंदर अगर इमोशन ज्यादा है तो मैं चेंज कैसे करूं? मुझे नहीं पता कर। हाँ, नहीं तो मित्रों, हम तो डोसा बना के भी खा सकते हैं। जैसे आपने डोसा बनते हुए देखा था, सेम वही प्रोसीजर है मेरी रोटी बनने का। हैकर है भाई, अपन हैकर है। सो गाइस हम लोग हॉस्पिटल आ गए डायरेक्ट। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता भाई कि जब इसको हॉस्पिटल लाने था कि हम लोग वीडियो बनाए। नहीं भाई, अब आ चुके हैं, अपॉइंटमेंट मिल गया है, नर्स कभी भी आ सकती है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं अभी। कैसा लग रहा है आपको ड्रेसिंग? कैमरा से दिखाते ना मुझे, मुझे ना दिखाते यार। क्यों? वैसे मेरा चश्मा बार बार गिर रहा है, सोच रही हूँ रख दूँ क्या? जितना भी कर रही हूँ उतना गिरे जा रहा है। पॉकेट में रखना था, रहने था ना, भी चश्मा पहन के। तभी मैं कितनी बार मेरा चश्मा गिरते गिरते। सो ये रहा हॉस्पिटल, ये दूसरा हॉस्पिटल है। यहाँ यहाँ ऑपरेशन नहीं हुआ था, यहाँ हम पहली बार आए थे। कब? एनेस्थीसिया और उसके क्रचेस के ट्रेनिंग के लिए। तो अब वेट करते हैं, कभी भी नर्स आएंगी वो आंखों को लेके जाएंगी। I'll be right. Sorry. बेचारी मेरी बच्ची। अभी मेरा खुलेगा ये। और मेरी फटेगी। हो सकता है मैं भाग भी जाऊं। थोड़ा देर तो आप डरना मत प्लीज़। तो आप डरना मत हाँ, अगर मैं भाग गया तो। भागोगे आगे, देखना तो आपको ही है, बाद में क्या करोगे भाग के बताओ। There's just a lot of layers here to get through to get to it. Thanks, kid. I'm not gonna cut you with the scissors. I promise you'll be okay. Dr. Wu would lose his mind if I cut you with the scissors. And he's far too friendly for that. आपको मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूँ। मेरी बच्ची। टेंशन नहीं है, अब भगवान चाहेंगे सब ठीक हो जाएगा, है कि नहीं? आपसे दौड़ेगी घोड़ों की तरह। You can shoot, but you can't do dress. That's So, bad. those are gonna stay in place. When Dr. Lee sees it next week after this dressing comes off, once they start getting wet, they'll start curling up on the edges. But right now it's fine. That one right there is fine, but you can change it. What it was is there was a little drain spot there before. So we'll move it here in a minute. Let's just go ahead. Yep, we'll put another one on that too. Actually, great. It never looked like this in India. Yeah. Everything was exposed, and by looking at the stitches, I myself was very scared. And are they going to cut my stitches also later? So those are all dissolvable sutures. Okay, that's great. There won't Because be last anything- time they, Yeah. There's nothing that's gonna get cut out of that. last time it was like a stapler pen, and that was hurting me a lot. Alright. We're just trying to put this on there with as few. That's why as I'm possible. also scared for this. Not to be afraid of, because it doesn't actually be wrinkle free either. I think But I have to do a better job than you do. Either way, it would be okay. Like I said, we don't even put these on everybody. Dr. Lou's the only one that actually uses it. It's alright. Anybody else, usually you just do a dressing change at home. And it just, well, gauze, this is fine.
if it doesn't stick to everything I'm touching. Okay. There we go. So when we change, we will also have to do this. You won't have to do it. Oh, okay. This should be good. When's your post-op appointment with him? 27th. What's today? 20? Uh, Yeah, this be good for a week. But yesterday on a call, he said that you can change it after 24 hours, and if there's no blood, you can just leave it on without any dressing. Why would you want to change it though if you don't have Okay. to? You can. I'm just saying. I think no, we are. It's totally up to you, but if it was me and I found out I didn't have to, I would not. Okay, I'll not do that. Start saying, these are good because we use them on joint replacements too. That dressing itself is good for a week. Okay. So if you see something come out from under it or something, let us know, but you shouldn't by now. There shouldn't be any kind of drainage. Like you're a week out, you shouldn't have anything going on. Okay. So it should look just absolutely fine. Okay. So if you do see anything, let us know. Okay. But I, if I did not have to do a dressing change for a week, would not. I will also not. If it gets wet underneath it or something, let us know. Okay. Even though It should be okay. yeah. Even though it looks like it's simple, but I will not. So change your it. steri strips are sticking under the edge, that's fine. Your incision's still under this part, it'll be okay. When you shower, because you're not gonna have all this crap around anymore, wrap your leg in saran wrap over that. This is waterproof, but cover it up with saran wrap anyway, because then you won't have to change it. Then you can take the saran wrap off when you're done, it'll be fine. Okay. Yeah, I tried to get one of these in Maya, but they didn't have this one. They're like super expensive dressings at CVS. I had to buy them for my wife's surgery, and the little bitty ones are like $20 a pop. That would be like $100. Oh, is it? I'm gonna go find another dressing for that one. We don't have one of those. Okay. सकू At least it's open now. मुझे इतनी गर्मी हो रही थी. बेचारी को बहुत गर्मी हो रहा था देख रहा है? ये सब देख रहे हो कैसी हालत हो गई है भाई साहब मुझे छूने पे लगा. बेचारी अब तो रैप नहीं करेंगे ना अब रात नहीं करेंगे. ओह माय गॉड सिर्फ यही रहेगा. अब तो देखने पे और मेरी डर मेरा पता है मेरा छाती देख मेरा सीना देख कितना तेज धड़क रहा है यान Before you had to buy one at Myers, we would just have you do like daily. It'd be just gauze, and you just change it every day. But it'd be a lot cheaper because that's a lot of money. It's also good for a week. Okay. So you can change it if you want. Once you change it, take that off. It'd be a daily dressing change with a Band-Aid. But if it's me, I just leave that there. I will also do that. But I'm kind of, as long as nothing's going on, it's kind of like a fish tank. The less people stick their hands around it, the better off you are. Yeah. जो घुटना मुझे सेकेंड सर्जरी के बाद भी लगता था कि सही जगह पे नहीं है, उठा हुआ है, डिसलोकेटेड है, बार बार उसके फिर जर्क लगता था. अब जाके लग रहा है इस सर्जरी के बाद सही है. फाइनली वो सही जगह पे आई कैन सी इट. स्वेलिंग जाएगी तो ज़्यादा आइडिया लगेगा. और सोच इंडिया में ऑपरेशन हुआ था भाई क्या हालत था घुटने का साला यहाँ पे तो जैसे कुछ पता ही नहीं चला कि किसी का ऑपरेशन हुआ है वो भी इतना 3 घंटे का है कि नहीं पता तो मुझे चल रहा है. हाँ तुझे पता नहीं ये देख के नहीं पता चल रहा है ना उधर तो मुझे खुजली खुजली हो गई किसी की पैर में. और मेन चीज कितना बड़ा था वो तो भी कटिंग था वो स्टिचेस जो थे यहाँ पे कुछ है ही नहीं. वाह टीचर्स तुझे नहीं पता चले अभी तक. टीचर्स उससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं यहाँ क्योंकि ये लेज़र ऑपरेशन तो नहीं. मैंने नहीं देखा ना मैं भाग गया ना मेरी फट गई थी ना टीचर्स जो जितना दिख रहा है ना इधर से लेके उधर. हाँ मालूम है इधर से लेके वहाँ तक रहेगा ही लेकिन मैं बोल रहा हूँ जब वो निकालने लगा तो मेरी इतनी हार्ट बीट तेज हो गई कि मैं भाग गया मैं देख ही नहीं पाया. मैं बोला नहीं देख पाऊंगा भाई मेरा अभी भी ठीक लग रहा है. नहीं रुक जा मेरा थोड़ा अम्मा वाला आ गया मेरे अंदर गुण पर जाना अच्छी कि मैं डर जाता हूँ. लाइफ टाइम के कहते हैं कि तो आप एक मिनट इसको कैसे मैं चेंज करूँ. ये तो भाई अंदर से है ना मेरे अंदर अगर इमोशन ज़्यादा है तो मैं चेंज कैसे करूँ.
मुझे नहीं पता, कर लो। हाँ, नहीं तो चलो। ठीक है गाइस, अब चलते हैं घर। घर पे जो खाना पीना है वापस से तुझे कुछ देना पड़ेगा, चल के देखता हूँ। दवा नहीं ठीक, क्यों नहीं खाई? भूल गई। मैं तो भूल ही रही है आजकल, मेरे को हाँ, हर इधर बार मैं आने ही के याद रेडी दिला रहा होने के हूँ। लिए भूल गई मैं। चलो फिर, चलो अभी। हाँ, ए कुछ जैसे मूवी में होता है कि वो ढलान होती है, उसको छोड़ देते हैं और वो उधर पूरा भाग जाता है, वैसा वाला कुछ हुआ अगर हमें थोड़ा पैर को। हाँ, छोड़ के मैं, डर नहीं नहीं नहीं, जैसे रहता ना कुछ लोग छोड़ के लड़की के किसी लड़की के पीछे भाग जाते हैं, वैसे वैसे। अरे यार क्या लड़की है, चलो भाग दो। आ गया भाई, कार आ गया। अब इसको बिठाओ और चलो। चलो भाई। हे गाइस, गाइस हम लोग हॉस्पिटल से आए। आने के बाद भाई रहता ना कि हम लोग 5 बजे पहुंचे यहाँ पे घर पे, और एक तो 5 बजे भी यहाँ पे एकदम धूप रहता है। आए तो अक्कू और मैं ना, हम लोग लॉकअप वाला शो देखने लगे। और शो देखने के बाद भाई मैं शो देखते देखते सो जाता हूँ कभी भी। मैं जब भी अक्कू के साथ देखता हूँ सो जाता हूँ। अभी अक्कू अपने फ्रेंड से बात करी, तो अभी मैं उठा 8:30 बजे। 8:30 बजे उठा, फटाफट फटाफट वीडियो एडिट किया, क्योंकि वीडियो एडिट नहीं किया था दिन भर से। तो वीडियो एडिट किया, व्लॉग मतलब एडिट किया, और फिर मैंने अपलोड पे लगा दिया। और उसके बाद अब मैं आया हूँ रोटी बनाने, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था पनीर और चावल तो बन चुका है, मुझे रोटी खाना ही खाना है, तो बनाना ही बनाना है। रोटी मुझे बनाने आता है नहीं। और इस कॉइल पर रोटी बनता नहीं है, आप नॉर्मल रोटी नहीं बना सकते। तो लास्ट ईयर हमने हैक निकाला था। हम क्या कहते हैं, जैसे डोसा बनाते हैं वैसे ही क्या बोलते हैं, आटा कर देते हैं, आटा लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, और वैसे भी नहीं होता था तो उसमें एक अंडा डाल दिया मैंने। जैसे मैंने 1 कप आटा लिया तो 1 अंडा डाला, 2 कप आटा लूँगा तो 2 अंडा डालूंगा। तो वो अंडा डाल के आटा को पूरा घोल बना के, अभी तो काफ़ी फेंटना बाकी है, स्टॉ करना है भाई। ये देखिए, तो हाँ आप दिख रहा होगा अच्छे से, ये देखिए। इसको अभी मुझे पूरा जैसे रहता ना कि एकदम मिक्स करना है, ताकि ये जो घोल है बहुत ही मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है, जो भी आपको समझना समझो, तो एक जैसा हो जाए ताकि आराम से रोटी बन सके। तो चलो इसको मैं फेंटना शुरू करता हूँ, आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, ठीक है। ये देखो, सो गाइस चलो बनाते हैं रोटी। पहले ये घी को हमें हर जगह फैलाना होगा। कहाँ क्या करना होगा? फैलाना होगा। घी को फैलाने वाले, क्या है तेरा नाम? मैं हो गया बदनाम। जैसे आपने डोसा बनते हुए देखा था, सेम वही प्रोसीजर है मेरी रोटी बनने का। तो लेकिन मुझे यहाँ पे एग्जॉस्ट चालू करना होगा। तो मित्रों, are you ready for my roti? ये देखो, देखो होल बन गया कि नहीं? वाह। तो इसको क्या करना है, खाली ऐसे डालना है, ऐसे डालना है, और जैसे जैसे डोसा बना रहे थे वैसे कर दो, बन जाएगा, बन जाएगा आपका रोटी। और भाई जो भी ये रोटी बनाना चाहता है ना, मैं उससे एक ही चीज बोलूंगा कि भाई अगर आपको रोटी बनाने नहीं आता है, आप ये हैक कर सकते हो। और हाँ, ये हैक करने के लिए और जीरो से जो स्टार्टिंग करना होता है ना, जीरो से प्रोसीजर क्या है, अगर वो प्रोसीजर आपको जानना है तो फिर वही चीज है, मेंबरशिप ले लो, ज्वाइन कर लो, आप लोगों को सब बता दूंगा, ठीक है। तो अब रोटी बनना शुरू हो गया। वाह, रोटी बनना शुरू हो गया, रोटी जलना शुरू हो गया। देखना पड़ेगा रोटी बन रहा है कि रोटी जल रहा है। आई थिंक रोटी बन रहा है, रोटी बन रहा है गाइस।
वाओ, व्हाट अ बॉय। थोड़ा सा इसको अच्छे से पकने देना है। क्या करना है ना, पकने देना है। पकेगा नहीं तो ये बनेगा कैसे? क्योंकि सागर के गागर में ढागर है, तो मैं क्या करूं? वाओ, लुक एट दिस। आपको एक बार आपको दिखाता हूं। चलो, ये देखो, बन गया कि नहीं अपनी रोटी? इसे कहते हैं हैक। हैकर है भाई, अपन हैकर है। अगर रोटी खाना है तो खाना है, अगर बेल के नहीं खा सकते हैं तो मित्रों, हम तो डोसा बना के भी खा सकते हैं। समझे? बनाता हूं भाई। सो गाइस, देखा, 2 रोटी तो बन गया है। मतलब ये आपने नहीं देखा, लेकिन अब देख लिए हो कि 2 रोटी बन गया है। तीसरी रोटी मेरी ऑलमोस्ट बन गई है। तो 1 कप, ये देखिए, ये कप है, ये 1 कप, इसी से मैंने आटा लिया और उससे 3 रोटी बनाए। तो अगर जो 3 या 4 रोटी खाते हैं उनके लिए भाई 1.5 कप यूज कर लो। और रही बात, मैं इसलिए कर रहा हूं कि 1 रोटी या आधी रोटी अक्कू खाएगी, बाकी मैं खाऊंगा। और भाई चावल भी तो है, इस वजह से मैंने इतना कम बनाया, नहीं तो मैं 2 कप लेता अगर खाली रोटी खाना रहता हो। तो सोचिए समझिए, और गैस को अगर ज्यादा गर्म हो गया तो बंद कर दीजिए। समझे? हाँ, तो सोचिए समझिए और अच्छे से रोटी बनाइए। अगर आप लोगों को रोटी बनाना नहीं आता है तो ये हैक आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जो भी बच्चे, जैसे हम यूपीएससी वाले बच्चे हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, अगर हम अंडा खाते हैं, अगर तो नहीं खाते फिर उनके लिए तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता भाई, वो अपना उनका भगवान ही मालिक है। तो जो अंडा खाते हैं वो ये हैक दिल्ली में यूज कर सकते हैं भाई। दिल्ली में आजकल वैसे भी रोटी देखो बहुत घटिया ही मिलता है। जो हम यूपीएससी के स्टूडेंट लोगों का जैसे हब है, मुखर्जी नगर, वजीराबाद, राजेंद्र नगर, दुनिया भर के नगर, वहां पे दिक्कत होगी। तो अगर उन लोगों को दिक्कत फेस नहीं करना है, ये बहुत ईजी है। ना आपको आटा सानने का झंझट है, ना आपको बेलने का झंझट है, ना कुछ। डायरेक्ट गोलो बनाओ, गोलो बनाओ, बहुत ईजी है। तो कैसा लगा ये हैक और कैसा लगा मेरा ये रोटी? देखो, रोटी पक रहा है, ये देखिए पक रहा है और पक जाएगा, टेंशन मत लो। आई थिंक मैंने बहुत जल्दी गैस बंद कर दिया है, तो गैस वापस से चालू कर देता हूं। ये सावधानी भी आपको देखनी होगी। ये गैस नहीं, कॉइल है, कॉइल की वजह से ये हो रहा है। अगर गैस होता तो भी मैं ऐसे ही बनाता, क्योंकि मुझे रोटी बनाने नहीं आती। ठीक है, चलो, रोटी ये तो बन गई है। अब हमें खाते हुए देखो और फिर सो गाइस, अक्कू का प्लेट रेडी हो चुका है। अक्कू का प्लेट रेडी हो चुका है, देख लीजिए। तो चलो अब उसको देता हूं और वो खाएगी। अरे बन्नो, वो टेबल कौन लेगा? मैं, मुझे ही देना पड़ेगा। ठीक है यार, मुझे ही तू इतना काम करवा रही है ना, मैं भाग जाऊंगा छोड़ के, मैं पहली बता रहा हूं। नहीं, मेरे को गुस्सा आ रहा तेरे ऊपर। मेरी मम्मी ने बोला अगर जरा भी तू मुझे परेशान करे मैं सीधे इंडिया भागा हूं। और सच में अब मुझे लग रहा तू परेशान कर रही है, पहली बता रहा हूं। गाइस, कैसा लगा ये वाला? ऐसा वीडियो चलता है ना, मैंने देखा था। तो ठीक है, अगर ये चलेगा ना तो इतना सेक्शन आप लोग फैला दो हर जगह, फैला दो हर जगह, फैला दो। अब मैं पहले इसका टेबल दूं भाई, इसका टेबल दूं ताकि ये उस टेबल पे बैठ के खाए। ठीक है, इतना सारे डांट डांट के इसने मुझे बोला वीडियो बना रहा हूँ, अच्छे से खा, नाटक मत कर, जितना दिया चुपचाप से खा ले, इतना मुझे खाना नहीं खा। हाँ तो क्यों नहीं खाना है? हर चीज में ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। एक तो इतना सा दिया हूँ, इतना छोटू सा चावल, एक रोटी और पनीर की सब्जी। कैसा है? अच्छा लगा ना? मैं अच्छा ही बनाता हूँ। मुझे पता था तुझे यही डायलॉग बोलना। सो ठीक है गाइस, अक्कू खाने बैठ गई है। मैं भी चलता हूँ, खाता हूँ, इसके साथ ही खाऊंगा, लेकिन बस उसके स्पेशल टेबल पे नहीं खाऊंगा, अपना आराम से बैठ के खाऊंगा। तो ठीक है, ये जो खाने का टाइम है ना, थोड़ा फुर्सत मिली है तो फुर्सत से खाता हूँ। और आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि इसके बाद
बंद ही कर दूं क्या मैं? बंद ही कर देता हूँ यार। अब इसके बाद क्या है, कुछ बोलने लायक तो बचा नहीं है मेरे लाइफ में, है कि नहीं, आज के दिन का। तो क्या करूँगा मैं? तो ठीक है गाइस, खाने के साथ ही मैं इस व्लॉग को भी खत्म करता हूँ। तो जैसे जैसे खाना खत्म होगा वैसे वैसे ये व्लॉग खत्म होगा, क्योंकि अगले 10-12 सेकंड तो लगेंगे ही ना। तो ठीक है गाइस, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मिर्ची डालता है ये लड़का। तब तक के लिए क्या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट। चलो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।